अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1442 اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ، آج اس کی 19 تاریخ ہے. کل گزرے ہوئے دن کو اسلامی تاریخ میں ایک زبردست مقام اور شہرت حاصل ہے جو 18 ذوالحجہ کا دن ہے. تاریخ میں 18 ذوالحجہ سن ہجری 35 سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے یاد کیا جاتا ہے. جو واقعات اور حالات آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کل گزشتہ کے ہیں. ایک دن گزرا ہے 18 ذوالحجہ سن ہجری 35. اسلام کے اندر ایک عظیم الشان اور ایک زبردست قربانی پیش کی گئی. وہ حضرت عثمان ابن عفان ڈبل داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اور بہت ہی بربریت کے ساتھ قصر خلافت پر چڑھ کر 200 باغیوں نے، بلوائیوں نے، مہاجرین نے المناک طریقے سے جو شہادت کی، ان کا مختصر پس منظر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بزرگوں، ایک نقطہ بنیادی طور پر ذہن میں یہ بٹھانا چاہیے کہ اسلام ہمیشہ سے قربانیوں میں رہا ہے اور اسلام ہمیشہ قربانیوں میں رہے گا. قربانی کے بغیر کبھی نہ فرد، نہ کوئی سماج، نہ کوئی معاشرہ، نہ کوئی کمیونٹی کبھی ترقی کر سکتی ہے اور نہ کی ہے. اسلام ہمیشہ سے قربانیوں میں رہا اور قربانی اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں سے لیا کرتا ہے اور قربانی اللہ کے مخلص اور اللہ کے پسندیدہ بندے دیا کرتے ہیں. پچھلی جمعہ میں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی عظیم قربانیوں کی ہی تو یاد بنائی تھی. ابراہیم خلیل اللہ کے 5 امتحانات قرآن نے بیان کیے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
बिकलिमातिन फअतम्महुन्न। अल्लाह से खुल्लत का इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान दिया और अल्लाह ने इब्राहिम को खलील साबित किया, लेकिन 5 आजमाइश और कसौटी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लगना पड़ा। फिर कामयाबी पर अल्लाह ताला ने मुजदा सुनाया। ठीक इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, हजरत हसनैन करीमीन में से हसन ने कुर्बानी दी, हजरत हुसैन ने कुर्बानी दी। आने वाले महीने में सैयदना हुसैन इब्न अली की कुर्बानी की एक अजीब यादगार कायम की जाएगी और लोग इसका जश्न भी मनाते हैं। ठीक इसी तरह सैयदुस शहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना के करीब में उहुद के दामन में संगलाक पहाड़ियों में इस्लाम के इस शेर ने सैयदुस शहदा का लक़ब हासिल फरमाकर अपने जिस्म का हर रूह अल्लाह के लिए कुर्बान किए। तारीख का वो मजलूम शहीद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के फजाइल और मनाकिब पर एक मुफस्सल बयान मैंने यहां दे दिया था। खलफाए राशिदीन, अशराए मुबश्शरा, उम्महातुल मोमिनीन, बनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुफस्सल बहसें पहले हो चुकी है। आज हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के मुख्तसर गोशे, जिनसे इनका आली कदर मंजिलत होना और पैगंबर से रिश्ता-ए मोहब्बत में नुमाया होना और इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानियां दे देना और फिर अपनी शहादत पर नबी के शहर का ख्याल और अहले मदीने का ख्याल, अपनी जान की परवाह किए बगैर इस्लामी सफों में इत्तेहाद बहाल रखना, यह हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का एक खुसूसी किरदार रहा। असहाबुल फील के वाक़या के बाद 6 बरस गुजरे थे कि खानदान कुरैश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाई 5वीं पुश्त में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के विलादत बसआदत मक्का मुकर्रमा में होती है। वाक़या असहाबुल फील उस वाक़या को कहा जाता है जिसमें अबरहा ने हाथियों के जरिए से मक्के पर चढ़ाई की थी। इसका बयान अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकुल में कुरान बयान करता है। इस वाक़ई को 6 बरस गुजरे थे कि अल्लाह के पैगंबर की 5वीं पुश्त के दादा के यहां हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की मक्का मुकर्रमा में विलादत बसआदत होती है। यानी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का और अल्लाह के नबी का 5वां दादा एक है। इनके वालिदा माजिदा अरवा हजरत उस्मान की मां अल्लाह के नबी की फूफीजाद बहन के बेटे हुए, तो दोनों निस्बतों से कराबत नबवी आलिशान है। एक कुरुशी होने के एतबार से, आबाई एतबार से, बाप की तरफ से, और मां की तरफ से फूफीजाद बहन के बेटे हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये तो खानदानी शराफत। किसी भी इंसान की औरत के लिए उसकी खानदानी शराफत पर बहस होती है। इसलिए इस्लाम में नसब का रिश्ता चलता है। नसब बाप से साबित होता है। इस्लाम में नसब बाप से साबित होता है, इसलिए निकाह रखा जाता है और निकाह से औलाद होती है और नसब बाप से चलता है। हरामी की कोई फजीलत और शराफत नहीं होती, इसलिए कि उसका नसब मालूम नहीं। इस्लाम में नसब की बहुत ज्यादा अहमियत है। इसीलिए कुरान ने बतौर नेमत के अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते वजअलहू नसबन व सहरा,
इंसान के लिए दो शराफतें हैं, इंसान को नसब वाला बनाया और इंसान को ससुराल वाला बनाया। दो शराफतें कुरान बयान करता है, वजअलहु नसबन व सहरा, नसब बाप से साबित होता है और ससुराली रिश्ता निकाह से साबित होता है। कुरान ने बतौर इनाम के और कुरान ने बतौर एहसान के इन दोनों रिश्तों का जिक्र किया, इसलिए मैंने भी जिक्र कर दिया हजरत उस्मान के खानदानी शराफत। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर से पहले, तलहा और जुबैर से एक दिन पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक की रहबरी पर हल्का बगोशे इस्लाम हुए, मुसलमान हो गए। इनका इस्लाम बहुत अच्छा रहा, बहुत शर्मीले थे, हया और वफा के पैकर थे। अपने घर के बाथरूम में नहीं, पूरा घर बंद करके अंदर गुस्ल करते थे और कपड़े उतारे हुए होने की हालत में बाथरूम में कभी खड़े नहीं हुए हैं। अल्लाह से इतनी हया और शर्म रखते थे। हया और शर्म इस्लाम का कीमती जेवर है और कुर्बी कयामत बाहया और शरीफ इंसानों की इस शराफत के जेवर को फासिक लोग उतारने की कोशिश करेंगे। हया और वफा का पैकर इंसान कभी अल्लाह की तरफ से हया और वफा की दी हुई चादर को अपने से उतरने नहीं देगा। ये उस इंसान की कामयाबी की अलामत होगी, वरना जमाने के फासिक काम ये करेंगे, हया और वफा की चादर को उतार कर नंगा कर दे। एक इंसान का जिस्म के कपड़े उतार कर नंगा किया जाता है, वो बड़ी हिंदी है, बुरी चीज, लेकिन उसके मुकाबले में वो नंगा कर देना कि उसके हया और वफा को तार तार कर दे, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे लोग हर माशरे और समाज में होते हैं और हर फील्ड में मिलेंगे कि इंसान की हया और उसकी वफा पर हमला करे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इतने वफा और हया के ज़रबुल मसल इंसान थे कि आसमानों पर जिब्रील और अल्लाह भी उस्मान की शर्म का लाज रखते थे, ख्याल रखते थे, लिहाज रखते थे। अल्लाह भी उस्मान की शर्म का लिहाज रखता था, जिब्रील भी उस्मान की हया का लिहाज रखते थे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ज्यादा। मैंने वाकया सुनाया था, अबू बकर तशरीफ लाए, आप टेक लगा कर बैठे हैं और आपने लुंगी ज़ेबे तन फरमाई है, पिंडली खुल रही थी। दस्तक दी, कौन? कहा अबू बकर है, आ जाओ। आप यूं ही बैठे रहे। फिर उमर में भी यही किस्सा। तीसरी मर्तबा जब दस्तक दी का कौन? का उस्मान है, अंदर आना चाहता है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ठहराओ। अब ठीक बैठ गए, अपनी चादर सही कर ली और फिर फरमाया आने दो। हजरत अबू बकर और उमर ने सवाल किया, मैं आया कोई एहतमाम नहीं, ये आए कोई एहतमाम नहीं, उस्मान के आने पर आपने इतना एहतमाम किया, क्या आप ठीक ठाक बैठ गए? ये दोनों ससुरे हैं, वो दामाद है। अबू बकर की बेटी आयशा रसूलुल्लाह के निकाह में है, उमर की बेटी हफ्सा रसूलुल्लाह के निकाह में है। तो ससुर के आने पर दामाद को ख्याल करना चाहिए, यह अदबी बात है। और यहां दामाद के आने पर ससुर ये ख्याल करता है, कहा इस रिश्ते की वजह से नहीं। ए हजरत शेखन, अबू बकर और उमर के दिल बहुत साफ थे, पैगंबर के बाबत जर्रा बराबर कोई कदूरत दिल में नहीं रखते थे, तो इस मकाम को पहुंच ही नहीं सकते। आज हमारा हाल ये है, हम कदूरत दिल में बहुत रखते हैं, तो कदूरत ने साफ साफ पूछ लिया ऐसा फर्क क्यों? तो कहा ये सेहरीली और दामादी रिश्ते की वजह से नहीं। अबू बकर उमर जिब्रील भी उस्मान के हया का ख्याल रखते हैं और अल्लाह भी आसमानों पर उस्मान के हया का ख्याल रखता है, तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस्मान की हया और शर्म का लिहाज क्यों न रखूं? इतने ऊंचे शर्मीले थे। इसीलिए हम जुमा के खुतबे में सुनते हैं, वह अला कामिलिल हयाई वल ईमान, वह अला कामिलिल हयाई वल ईमान, पूरे पूरी हया और पूरा पूरा ईमान उस्मान में था।
हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़या असहाबुल फील के 6 बरस बाद मक्का मुकर्रमा में आपकी विलादत बासआदत खानदान कुरैश में होती है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से करा दिया। ठीक हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने पर मक्के में सताए गए जैसे और सहाबा सताए गए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अल्लाह के पैगंबर की इजाजत से मक्का मुकर्रमा से हबशा की तरफ अपने अहल के साथ हिजरत की। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, उस्मान पूरी दुनिया में इब्राहिम और लूत के बाद वो पहला इंसान है जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़कर आबाई वतन को छोड़कर मक्का से हबशा की हिजरत की। जब हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को पता चल गया बाद में कि अल्लाह के पैगंबर ने मदीना की तरफ हिजरत की है, तो दीगर खालिद बिन वलीद वगैरह से पहले हबशा से अब अपने अहल के साथ हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने मदीना की तरफ हिजरत की क्योंकि अल्लाह के पैगंबर ने यहां हिजरत की थी। आप पहुंचे हैं बदर से पहले और बदर का मारिका पेश आया है। ऐन बदर के दिन अल्लाह के पैगंबर ने हजरत उस्मान को यहां ठहरा था। बदर से लेकर के तमाम हनैन तक के गज़वात में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अल्लाह के नबी के साथ रहे हैं। हजरत रुकैया बहुत बीमार थी, तो तीमारदारी के लिए पैगंबर ने फरमाया तुम मदीने में रहो, तुम्हें बदरीयत में शामिल कर लिया जाता है। तो आप बदरीयत में से हैं, चूंकि पैगंबर के हुक्म पर मदीने में रहे थे। फिर यहां जब अल्लाह के पैगंबर मदीना पहुंचे हैं तो हजरत रुकैया का विसाल हो जाता है। जब अल्लाह के पैगंबर बदर से वापस तशरीफ लाए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से फरमाया, अल्लाह ने जिब्रील भेजा है कि मुझे हुक्म दिया है कि मैं मेरी बेटी उम्मे कुलसूम को तेरे निकाह के अंदर दे दूं। अपनी दूसरी बेटी अल्लाह के पैगंबर ने उम्मे कुलसूम को रुकैया के बाद उस्मान के निकाह में दी। जरा सोचा, अल्लाह हुक्म दे रहा है और पैगंबर के कल्ब अतहर पर वही उतरती है कि नबी जी अपनी बेटी उस्मान के निकाह में दो। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के निकाह में उम्मे कुलसूम को दे दिए। सन हिजरी 9 में हजरत उम्मे कुलसूम की वफात होती है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा अली के साथ थी। ज़ैनब का भी विसाल हो चुका, 2 बेटियां ये भी चली गई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को बुलाया और कहा, ए उस्मान, अगर मेरी और बेटी होती तो मैं रुकैया और उम्मे कुलसूम की तरह उसको भी तेरे निकाह में दे देता। ये हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत फरमाई, मस्जिद नबी की जमीन छोटी थी, इसकी तौसी की जरूरत थी। अपने पूरे माल से मस्जिद नबी की जमीन बहुत वसी की और मस्जिद की तौसी भी हुई। अल्लाह के पैगंबर ने जैसुल असरा एक गजवे का सामान मांगा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को उस गजवे का तबूक का सेठ करार दिया। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जब मदीना पहुंचे हैं, एक बीर रोमा था जो यहूदियों के कब्जे में था, बहुत महंगा पानी बेचता था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, कोई है जो खरीद कर मुसलमानों को वक़्फ़ कर दे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के माल से बीर रोमा खरीदा गया, मुसलमानों को वक़्फ़ किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के 2.5 साल पूरे हुए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के वक्त पूरा हुआ। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। 12 साल कम 12 दिन हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। 6 साल बहुत ही इत्मीनान के गुजरे इब्तिदाई। आखिरी 6 साल इंतहाई आजमाइश, इब्तिला, कशमकश और कशीदगी के 6 साल निकले।
یہ ضروری نہیں ہے کہ ذمہ میں تاج ہی پہنائے جائے، وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر ذمہ داری میں پھول ہی برسائے جائے، کانٹوں ہی کا تاج ہوتا ہے۔ اور انسان کوشش اور محنت کرتا ہے دو اعتبار سے، ایک اللہ سے رابطہ قائم کر کے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے عاجزی کر کے دعا کرتا ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق پر محنت کرتا ہے، تو پھر لوگوں کے قلوب میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ایک عجیب خلافت کی کارگزاری ہے۔ آخری 6 سال بہت آزمائش کیا ہے۔ وہ دن بھی آیا، 18 ذوالحجہ تھی، کل کا دن تھا۔ وہ سن ہجری 35 میں جمعہ کا دن پڑا تھا۔ مسجد کے نبی کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ جب ممبر پر چڑھے ہیں، بلوائی مسجد میں پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے شدت سے انکار کر دیا کہ خطبہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میں جب آواز بلند ہوئی، صحابہ کرام نے اس کو بٹھایا، لیکن ایک منظم سازش تھی، شور بہت ہونے لگا، اور تھوڑی دیر میں مسجد نبی پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، الیاذ باللہ۔ حضرت عثمان ابن عفان گھسی کھا کر کے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، قصر خلافت میں لے جائے گئے۔ حضرت عثمان ابن تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو پوچھا، ما بال اہل المدینہ، ذرا مجھے یہ بتا دو مدینے والوں کے حالات کیا ہیں۔ اتنی فکر خلیفۃ المسلمین کو، اپنی رعیت کی اتنی فکر تھی، اپنی جان کی نہیں، مجھے کیا ہوا، مجھ پر کس نے حملہ کیا، نہیں مدینہ والوں کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان جب عصر کی تیاری مسجد نبوی کی کر رہے تھے، اعلان ہو گیا مسجد نبوی کے اندر داخلہ بند، جس کے مال سے مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، جس کے مال سے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، جس کے مال سے مدینہ کو میٹھا پانی نصیب ہوا، جس کے مال سے تبوک کا سامان خریدا گیا، یہ وہ عثمان اس کائنات کا وہ عظیم الشان انسان تھا کہ پیغمبر نے جنت میں حور سے ان کی شادی دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی۔ ہوا تھا یہ مدینہ میں قحط پڑا تھا، بہت بڑا قحط۔ ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، ان کو تو فتنوں کو نمٹتے ہی 2.5 سال نکل گئے تھے، 2 سال فتنوں کی سرکوبی کرتے کرتے، ماحول بناتے بناتے 2-2.5 سال نکل گئے کہ وقت پورا ہو گیا۔ فاروق اعظم کو میدان ملا، پھر فتوحات پھیلی، جہاد امن عالم اور آفاق عالم کے لیے قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ عالمی اصلاح اور آفاقی اصلاح کا بنیادی عنصر ہے، اور نفس کی اصلاح ہر انسان کی اپنی اپنی استطاعت ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کا دور خلافت، مدینہ میں قحط کچھ تھا نہیں، سب لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین کچھ کرو، اب تو برداشت بھی نہیں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا رعیت کو اپنے رئیس سے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کرنی چاہیے، اسے ثابت ہو رئیس کو اپنی رعیت کی عمومی اصلاح احوال کی اور خوشحالی کی فکریں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اس کو بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرما دیا، انشاءاللہ آج شام تک اللہ کوئی فتوحات کے دروازے کھولے گا۔ اب قوم نے حجتائی نہیں کی، سن لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی ہوئی، شام ہوئی، ملک شام سے رات تک ملک شام سے 1000 اونٹ گلے اور ساز و سامان سے بھر کر کے شام سے مدینے میں اس دن پہنچے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کا مال تھا، اتنا بڑا مالدار صحابی 1000 اونٹ ملک شام سے ساز و سامان اور گلے کے ساتھ لدے ہوئے مدینہ میں رات تک پہنچ گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں،
अब इधर क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास मदीना के ताजिर सब आ गए, व्यापारी लोग, काफिला आया माल लेने के लिए। ताजिर ने मांग की 10 के 12 दूंगा, 1 के 2 दूंगा, 10 के 12। कहा इतने में नहीं देना, इससे ज्यादा। क्या 10 के 15 देंगे? क्या इतने में नहीं देना, इससे भी ज्यादा। तो क्या इससे ज्यादा आपके माल की कीमत नहीं आ सकती है, 2 की कीमत? क्या ये नहीं आ सकता है? तो कहां आ सकता है? हजरत उस्मान ने फरमाया आएगी। तो क्या हम जितने बड़े बड़े ताजिर हैं सब आपके पास जमा हैं, इसके अलावा मदीना में कोई अब ताजिर है ही नहीं, और हम सबकी बोली ये है कि 1 के 15 ले लो, यानी 10 पर 15 ले लो, इस पर भी आप राजी नहीं, और आप कहते हैं इससे ज्यादा मेरे पास खरीदने वाला मौजूद है, तो वो खरीदार कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि 1 के 10 लूंगा। कहा हम नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने सौदा अल्लाह से कर लिया, और हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमा दिया 1000 ऊंट का गल्ला और सामान मदीना मुनव्वरा के आम जरूरतमंद इंसानों के लिए मैं हदिया करता हूं, इसको कबूल फरमा ले। उसी रात अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। एक बहुत बड़ी जन्नत में महफिल सजी थी, और जन्नत की महफिल की सजावट अजीब अंदाज थी, जिसमें हूरे इन से शादी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हो रही थी। एक सहाबी ने अल्लाह के पैगंबर को तेजी से जाते हुए रोका, फरमाया इतनी जल्दी? कहा क्यों जल्दी न करूं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की जन्नत के अंदर आज दुल्हन से शादी हुई है, उसकी महफिल अरूसी में शिरकत के लिए मैं जा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर बलवाइयों ने हमला किया, 40 दिन तक मुहासरा किया। हजरत मुग़ीरा इब्न शुअबा ने फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया की तरफ से गवर्नर थे, और हुकूमत के मामले में बहुत होशियार थे, कामयाब वजीर थे मुग़ीरा इब्न शुअबा। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, 3 बातें समझ में आती हैं, अब 3 में से किसी एक की इजाजत दे दो। फ़इन्न लका अददन व क़ुव्वतन, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, फौज आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, ताकत आपके पास है, हुक्म कर दो हम इनसे निमट लें। दूसरा, आपके मकान के पीछे की तरफ एक दरवाजा कर दे और आपको पीछे से मक्का पहुंचा दे, और मक्का दारुल अमन है, वहां आपको कोई उंगली नहीं कर सकेगा। तीसरा, या तो आप मुल्क शाम चले आए अमीर मुआविया के यहां, और अमीर मुआविया को आप जानते हैं, आपको कोई उंगली नहीं कर सकता है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का जवाब सुनने के काबिल है, जो रहती दुनिया तक नस्र इंसानी की हिदायत के लिए काफी है। फरमाया मैं 3 तजवीजों में से एक भी कबूल नहीं कर सकता हूं। पहली तजवीज मुग़ीरा आपकी ये है कि मैं यहां से मक्का मुकर्रमा चला जाऊं, ये मदीने में लड़ाई की इजाजत दे दूं। अल्लाह के पैगंबर का मदीना और मदीना की सरजमीन को मैं खून से रंगीन करूं, सिर्फ मेरी जान की हिफाजत के लिए, सिर्फ मेरी आबरू के लिए। उस्मान इस बात की इजाजत नहीं दे सकता है कि मेरी वजह से नबी के मदीने में खून रेजी हो। उस्मान इसको पसंद नहीं करेगा। तुम कहते हो मक्के चले जाओ, देखो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है, एक कुर्सी मदीना में मक्का में एक गुनाह करेगा, उसको आधी कायनात के इंसानों के गुनाह के बराबर सजा दी जाएगी। तो मेरे में ये हिम्मत नहीं है कि मैं मक्का मुकर्रमा छोड़कर, मदीना छोड़कर मक्का मुकर्रमा में जाकर के खुदा नखास्ता में इसका शिकार हूं। तीसरी बात, मुल्क के शाम चला जाऊं, मैं नबी के पड़ोस के लिए जिंदगी भर फिदा कर दी, अब आखिर में जान की हिफाजत के लिए नबी का पड़ोस छोड़कर दुनिया में कहीं जाऊं। उस्मान इस बात को पसंद नहीं करता है। दुश्मनों के हमले बढ़ते रहे, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से खाना बंद किया, जरूरियात जिंदगी पर पाबंदी लगाई, महासारा बलवाइयों का बहुत खतरनाक मदीने में। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने बेकरार होकर हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत ज़ुबैर और अम्मे आयशा को पैगाम भेजा कि भूख से बहुत बेताब हूं,
میرے لیے کھانا اور پانی بھیجو۔ حضرت علی نے کوشش کی، راستے میں بلوائیوں نے حضرت علی سے زبردستی کھانا پانی چھین لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر کے حضرت عثمان کی طرف قصر خلافت میں پھینکی، اس بات کے لیے کہ میں نے تو اپنی ممکنہ کوشش پوری کی، لیکن یہ لوگ اس سے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں مگر مدافعت کے۔ اپنے بیٹے حسن کو بیچ دیا، اپنے بیٹے حسین کو بیچ دیا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پہنچے، عبداللہ ابن زبیر پہنچے۔ 200 صحابہ کی فوج قصر خلافت میں تھی، جن کے امیر اس فوجی دستے کے عبداللہ ابن زبیر تھے۔ بہت کوشش کی لیکن آخر وہ دن بھی آ گیا کہ بلوائی چڑھ گئے قصر خلافت پر، اور حضرت عثمان روزے سے تھے، صائم الدہر تھے، زندگی میں روزہ رکھتے تھے، رات کو بہت کم سوتے تھے۔ اس کائنات کا وہ صحابی رسول ہے جو ایک رکعت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن ختم کرتا تھا۔ اس کائنات اس امت کا وہ صحابی رسول ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتا تھا، وہ عثمان ابن عفان۔ قصر خلافت کی چھت پر چڑھ کر آخر میں حضرت عثمان ابن عفان نے ایک بہت ہی اثر کرنے والا خطبہ دیا۔ اے لوگوں، میں خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہوں، میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ انبیاء کے بعد میں دنیا کا وہ پہلا انسان ہوں جن کو اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا ہے۔ میں نے میرے مال سے تبوک کے لیے سامان دیا، میں نے میرے مال سے مسجد نبوی کی زمین خریدی، میں نے میرے مال سے بیری روما خرید کر کے تم دیا جس کا میٹھا پانی تم پیتے ہو۔ اپنی ساری کارگزاری لوگوں کے سامنے پیش کی۔ میں وہ انسان ہوں اور ابو بکر جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بت نہیں پوجا، میں وہ انسان اور ابو بکر جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ عام دورہ تھا، ابو بکر اور عثمان کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پیے تھے، بت پرستی نہیں کی تھی۔ اے لوگوں، اسلام میں قتل 3 وجہ سے جائز ہے۔ کسی پاک دامن شادی شدہ عورت سے اگر زنا کیا ہو تو قصاص کے اندر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں نے نہ زنا کیا، میں نے نہ چوری کی، میں نے نہ کسی پر تہمت لگائی، تم کون سے گناہ کی پاداش میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ لیکن ان لوگوں کے دلوں پر ذرہ برابر اثر پیدا نہیں ہوا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا، روزے سے تھے، قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ ایک باغی چڑھ گیا قصر خلافت سے اوپر بھی، بیوی نے روکنے کی کوشش کی، انگلیاں کٹی، حسنین کریمین پر زد آئی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر نے ضربے کھائی۔ ایک لوکھن کا پائپ حضرت عثمان ابن عفان کے مبارک سر پر آیا جس سے وہ گر پڑے، پھر نیزہ سینے کے اندر ڈال دیا گیا جس سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پہنچے تھے کہ حضرت عثمان کے جگر سے خون نکل کر کے مصحف پر آتا ہے۔ وہ مصحف ناطق تھا جس پر حضرت عثمان ابن عفان جو کاتب وحی ہیں، جو وحی لکھا کرتے تھے، جن کی زبردست محنت رہی، بالآخر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک پہاڑ پر کھڑے کھڑے تو مت ہل، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اگلے دن حضرت عثمان بن عفان سے فرما دیا، اے عثمان، ہم آپ کے افطار کے انتظار میں ہیں۔ وہ صبح میں روزہ رکھے ہوئے تھے، روزہ دنیا میں رکھا گیا، افطاری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کی گئی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر زندگی اور شہادت کے بعد بلوائیوں نے شرپسند عناصر ہر قوم، ہر ملک، ہر مذہب اور ہر سماج میں ہوتے ہیں۔
जैसा जैसा समझ इनकी सरकोबी की जाती है। हजरत उस्मान की शहादत हो गई, मसला खत्म नहीं। जनाजा बकी में दफन नहीं हो सकता है। हजरत उस्मान की नाश की बेहुरमतियों की तरतीबें बन रही है। खाली एक हुसैन की नाश की बेहुरमती नहीं हुई जिसकी याद में कायनात दुलदल बनाती है, और उस्मान इस कायनात का वो मजलूम शहीद है जिनकी शहादत पर जनाज़े पर संगबारी हुई। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की बकी में तदफीन से मना की गई। कौब हौशब में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दफन की तैयारी होने लगी। कोई बात में राजी नहीं। उम्मे हबीबा इस कायनात की वो मोहसिना आदम, हम सब की मां, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती ज़ौजा महतरमा, वह मैदान में आ गई। खबरदार, अगर उस्मान के जनाजे की तदफीन से तुमने रोका तो तुम्हारी मां उम्मे हबीबा बेहिजाब होकर तजहीज और तदफीन की कार्रवाई अपने हाथ में ले लेगी। वो गरजी, और इनकी गरज पर वो ताकत थी कि बलवाइयों की हिम्मत खत्म हो गई। और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कौब हौशब में जब अकेले दाखिल है दफन कर दिया गया। और मदीना मुनव्वरा में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की कब्र पर आज जो रहमतें और बरकतें वो नूर नाजिल होता है वो ज़ाहिरीन की आंखों के सामने है, जिसमें 10,000 सहाबा मदफून हैं, जिसमें 72,000 ऐसे लोग बादल मौत के दिन उठेंगे जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, हालात इंतहाई नामुनासिब है। मुल्क, बैरून मुल्क, पूरा आलम इस वक्त सिसकियां ले रहा है, अजीब कसमकस में मुब्तला है। वक्त का अहम तरीन तकादा यह है, न मालूम कायनात किस रुख में पलटेगी पता नहीं चलता। एक तरफ वो हजरात जिनका जमाना दराज से जोर घटाया जा रहा था, आज वो बरसरे इक्तदार आने की कोशिश में और आ चुके। एक अजीब कायनात में उथल फाथल हो रही है। इस उथल फाथल के अंदर कोई न कोई दर्स इबरत है। मुसलमान तंजीमें, मुसलमान इदारे, मुसलमान जमातें, मुसलमान जमइयतें, इनमें इत्तिहाद और बाहमी मुआनसत और एक दूसरे के लिए सलाह और फलाह और तरक्की ये बहुत जरूरी है, चूंकि पूरा आलम कसमकस में है। एक तरफ लड़ाइयां, एक तरफ जुल्म जोर, एक तरफ देखने जावे और हुकूमत प्रजा को लूट, कायनात में अजीब किस्म के हालात हैं। और दूसरी तरफ मीडिया देखने जावे तो 101% पूरा झूठ फैलाने में मुब्तला है। लड़ाई झगड़े, फसाद और उम्मत का बहुत बड़ा तबका, यहां तक कि हमारी नौजवान नस्ल रात दिन झूठ और झूठी खबरें, रात दिन झूठ और झूठी खबरें, ये बहुत दज्जाली तागूती फितना है। मेरे अल्फाज नोट कर लेना, शायद अब आने वाली नस्लें इन्हीं जुओं की नींद में बैठकर कहेगी कि कोई ऐसा भी था जो ये कह गया। ये दज्जाली तागूती फितना है जिसने अफराद के अफराद, खानदान के खानदान, समाज के समाज और कायनात को तोड़ फोड़ करके रख दिया है। 101% झूठ फैलाने वाला ये मीडिया, और इसको इस्तेमाल मुसलमान कर रहा है। और अब तो हमारे कुछ होशियार हो गए जो एक तो दूसरे पर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। याद रखना चाहिए, अपनी छगी मां से 36 मरतबा जीना करने की ताकत हो तो एक मुसलमान को बेआबरू करना। याद रखना चाहिए, किसी पाबंद से मुसलात अल्लाह के नेक बंदे को बिला किसी वजह से तुमने जलील किया या बेहुरमती की, मौत पर ईमान खत्म हो जाएगा, कुफ्र की मौत तय हो जाएगी। मुसलमान होकर क्या इस्तेमाल कर रहा है? अरे ताकत हो तो सीना सफर हो जाओ, हिम्मत हो तो सीने से लड़ो, और बाजू में ताकत हो तो आ जाओ मैदान में। ये इंसानियत के कारनामे हैं।
क्या वो बुज़दिली का सबक याद करते हो? क्या वो निप्पल का दूध पीने वाले तुम्हारे अंदर माओं की छातियों से दूध पिया हो तो ही वो कारनामा पैदा हो सकता है, वरना नहीं। बराए मेहरबानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेजा इस्तेमाल जिस नस्ल में घुस गया वो नस्ल बुज़दिल कौम बन जाएगी और जालिम तुम्हारी इज्जतों के वो परखचे उड़ाएंगे कि तुम्हारी नस्ल नजर पर चढ़ेगी। अल्लाह उस दिन से हिफाजत फरमाए। जरूरत है इस्लामी इत्तेहाद मजबूत किया जाए। ये उस्मान की शहादत कल को हो गई, आने वाली जुमा को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम की शहादत है और उसके रसूल जिगर गोशाए बतुल हुसैन इब्न अली की शहादत है। इस्लाम कुर्बानी से वजूद में आया, इस्लाम कुर्बानियों पर बाकी है और इस्लाम कुर्बानियों पर बाकी रहेगा जब तक मुसलमान कौम अपने मजहब के साथ, अपने दीन के साथ अल्लाह को कुर्बानी देती रहेगी, सुरखरू सरबलंद होगी। मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी जारी हो गए। अपने औलाद को दीनी मदरसों के हवाले करो। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक की जो है स्कूल के निजाम भी बन गए। श्रीनगर में अभी 9 से लेकर 12 तक में 70 लड़के पास हुए। 9वें धोरण से 12वां और कॉलेज के दूसरे साल में 70 लड़के कामयाब हुए, जिनकी मुकम्मल फीस भी मदरसा भरता है तकरीबन। तो स्कूलों का निजाम भी हो रहा है, तालीमी निजाम भी हो रहा है। अपने अपने औलादों को कल से ही दीनी मदरसों के हवाले करें। दूसरी बात यह है, यहाँ नागदा के पास फकीरवाड़ा है जिसमें गरीब शाह के बेटे हैं माहिर शाह, 2.5 साल का लड़का है, वो भी अहमदाबाद में है, उसको ब्लड कैंसर हो गया है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उसे सेहत आफियत बख्शे। 18 साल का लड़का ब्लड कैंसर में परेशान है। उनके वाली यहाँ आए हैं। आप हजरत से गुजारिश है, हमारे शहर ही का वाकया है, 2.5 साल का लड़का ब्लड कैंसर में परेशान है। अल्लाह ने दिया है ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से नमाज से फरागत के बाद इनकी मदद करते जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मुहलिक बीमारियों से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमावे। ये कैंसर का मर्ज अभी काफी तेज, काफी लोग अभी हॉस्पिटलों में इलाज ले रहे हैं, काफी लोग अभी ऑपरेशन और इधर उधर के वसाइल में हैं। अल्लाह ने हमें सेहत बख्शी है, तंदुरुस्ती बख्शी है, इज्जत बख्शी है। अल्लाह के दिए हुए सरमाया से किसी गरीब का, किसी फकीर की हम मदद करेंगे, अल्लाह ताला उन हालात से और हवादिसात से जरूर हमारी हिफाजत करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल अस्समावात व लकल हम्दु मिल अल-अर्द व लकल हम्दु मिल मा शि'ता मिन शैइन बअदु। या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या रहमान या रहीम, या गफ़ार या सत्तार, या वहाब या अजीज या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बगीमतक वंशुर रहमतक व अह्य बलदकल मय्यित। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बगीमतक वंशुर रहमतक व अह्य बलदकल मय्यित। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अस्क़िना ग़ीथन मुग़ीथा हनीअन मरीअन मुरीआ गदकन मुजल्लिलन साहन तबकन दाइमा। अल्लाह हम तमाम कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी ज़ात आली से ताल्लुक अता फरमा। अल्लाह उम्मत इस वक्त इंतहाई कशमकश में मुब्तला है। अल्लाह इदारों पर हालात आए तो ताल्लुम 2 हुए, अल्लाह तबलीग पर हालात आए तो 2 जमातें बनी। एक हमारी अमारत शरइया थी, अब इन पर हालात आए, ये 2 बनने के रुख में हैं। रब्बुल आलमीन किसका रोना रोए, किसकी फरियाद करे, किसका दर्द तेरे दरबार में पेश करे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये 3 ही चीजें बड़ी थी, दावत, मदरसा, खानका, अमारत शरइया। अल्लाह हर चीज
शिकाक और निफाक की तरफ जा रही है। तेजी के साथ फितने फैले हैं। मुस्लिम मीडिया जिनको 2% की कुछ आती है तो वह मुसलमान के खिलाफ इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मत दुआ का हथियार इस्तेमाल करने से यकसर कोता है। तेरे नबी ने फरमाया था, अद्दुआउ निअमल मुस्लिम, दुआ मोमिन का हथियार है। रब्बुल आलमीन पूरी कायनात कसमकस में मुब्तला है। ये हमारे हिंदुस्तान के हालात इंसानियत बर्बरियत के शिकार है, इंसानियत जुल्म तशद्दुद के शिकार है। एक तरफ से बेरोजगारी है, एक तरफ से महंगाई है। ऐ अल्लाह, अजीब अजीब कशमकश में उम्मत मुब्तला है। शराब व शबाब का भी दौर है, लड़ाई झगड़े का भी कोई कभी नहीं है। बुज़दिलाना हरकत करने में मुस्लिम मीडिया गैर मुस्लिम मीडिया को शर्मा रहा है। ऐ अल्लाह, ये हमारे हालात है। आसमान फौलाद बन करके उभर रहा है, तेरी जमीन अंगारा बन गई है। न खेती ऐ अल्लाह आबाद हो रही है, न आसमान नर्म हो रहा है, न बादल मूसलाधार बारिश बरसा रहे हैं। ऐ अल्लाह, जमीन जितना पानी है खींच ही जा रही है, वही गर्मी की गर्मी बाकी रहती है, ठंडक का नाम नहीं है। आसमान भी कहर की दावत देता है, जमीन भी नाराज हो चुकी है, वो भी हमको लुकमा बनाने की फिक्र में पड़ चुकी है। आसमान अंगारे बरसाने के करीब आ चुका है। जहां तेरा कहर बरसता है तो घरों के घर चले गए, आबादियों की आबादियां चली गई। अल्लाह, उनकी कब्रें भी नसीब नहीं हुई। कहां चले गए, कौन सी चीज उनकी लाशों को खा गई, पता नहीं चला। जब तो नाराज होता है तो बदला ले लेता है, और जब तो बदला लेने पर आता है तो तेरे बदले को कोई नहीं पहुंच सकता है। जब तो राजी होता है ऐ अल्लाह, तो उस वक्त रोजी उतारता है, और उस रोजी की बरकत की कोई इंतहा नहीं। मौला तो नाराज है, ये तो तयशुदा बात है। रब्बुल आलमीन तो नाराज है। वइज़ा ग़ज़बतु, जब मैं गुस्से होता हूं तो जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता हूं, और जब मैं राजी होता हूं तो तुम पर रोजियों के दहाने खोल देता हूं। और नादाद मौला, हम हुकूमत को बदनाम करते हैं, हम जालिम हुक्मरान को फकरे कसते हैं, लेकिन रब्बा तू ही नाराज हो चुका है। वो हमारे बुरे अमाल हैं जो हमें शर्मा रहे हैं। इंसानियत सिसक रही है, ये एक से दो होने के लिए तैयार नहीं है। रब्बुल आलमीन, तेरा ही करम चला रहा है, तेरी ही मेहरबानी चला रही है। अल्लाह, तूने इतनी बड़ी कुर्बानियों की तौफीक अता फरमाई, यह हमारे बस और इख्तियार में नहीं था। किसी का कोई शिम्मे खैर इसमें से तुझे कबूल आ गया हो, अल्लाह उसके सदके में पूरी उम्मत पर अमन और अमान की बारिश बरसा दे, सुकून की लहरें चला दे, रोजियों की लाइनें लगा दे। आय अल्लाह, बेरोजगारी को खत्म फरमा दे। लोग तो हमें बहुत डराते हैं कि 2023 तक ऐसा फाका चलेगा कि इंसान इंसान पर हमला करेगा, कोई घर बाकी नहीं रहेगा। रब्बा, ये कायनात की सिस्टम है। ऐ अल्लाह, तूने फरमा दिया है हदीस कुदसी में कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहता हूं कायनात को उलट फेर करता हूं। ऐ नाराज मौला, तो हमसे राजी हो जा, तेरी रिजा के अमल की तौफीक अता फरमा दे। उम्मत में बहुत मामूली तबका ऐसा है जिनके दिलों से तेरा खौफ निकल चुका है। रब्बुल आलमीन, इस्लाम दुश्मन अनासिर के मुकाबले में मुसलमान रह करके मुसलमान और इस्लाम को तोड़ने की साजिश में 2% तबका लगा हुआ है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, हम तो उनकी भी हिदायत मांगते हैं। और दवीद और अफा के दिन में और मुज़दलिफा की रात में जब जालिम को जन्नत दे करके, जालिम को मजलूम को जन्नत दे करके जालिम को माफ करने का जब नबी ने तुझसे मांगा था और तूने नबी की दुआ कबूल कर ली, तो हम कौन होते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत की हमको जरूरत न हो। हमें आका की शफ़क़त और मोहब्बत की जरूरत है। और मेरे परवरदिगार, इस उम्मत के जालिम को भी हिदायत दे दे, इस उम्मत के मजलूम की भी फरियादरसी फरमा दे। जहां कहीं आला कलिमतुल्लाह के लिए जानें खपाई जा रही है, माल खपाया जा रहा है, आबरूएं नीलाम की जा रही है, बहन बेटियां दाव पर लगाई जा रही है, बहुत लंबे जमाने से हो रहा है। अब उनकी मदद पर आसमान से तेरा लश्कर उतार दे। ऐ अल्लाह, अब तेरी मदद की तरफ जरूरत हो गई है, अब तेरी मदद के लिए आंखें आसमानों में तुरी हुई है। रब्बा, अब मदद फरमाए दे।
अब जुल्म पूरा फुट फुट करके बाहर आ चुका है। अल्लाह अब मजलूम की फरियादरसी का वक्त आ चुका है। अल्लाह या तो जालिम को तौबा की तौफीक दे दे, या तो मौला एकद्दू सफाई हस्ती से खत्म फरमा दे। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और अमान नसीब फरमा दे। हर परेशान हल भाई की परेशानी दूर फरमा दे। मकरूदीन के कर्ज की अदाई ये भी शक्लें पैदा फरमा दे। बे औलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमा दे। औलाद वालों के औलाद की मुती फरमा बरदार बना दे। जो लोग हॉस्पिटलों में इलाज ले रहे हैं अलग अलग अमराज में, जिनके आज भी ऑपरेशन होने वाले हैं, इन्हें सेहत आफियत तंदुरुस्ती शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमीरा नसीब फरमा दे। अल्लाह 2.5 बरस का एक बच्चा वो क्या ब्लड कैंसर को जाने, ए मेरे परवरदिगार, लेकिन तेरा फैसला तो इंसाफ का है। तू तो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता है। क्या हिकमत होगी, क्या मसलियत होगी, क्या तेरा फैसला होगा, वो तो तू ही बेहतर जान सकता है। इसमें तो हम कौन होते हैं तेरी खुदाई के अंदर। अल्लाह हरफ रखने वाले, हरफ तो क्या देखने वाले भी कौन हो सकते हैं मेरे परवरदिगार। लेकिन इस मासूम सी नन्ही जान को जो अभी मासूम है, अभी बालिग भी नहीं हुआ है, इसे सेहत आफियत तंदुरुस्ती सलामती शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमीरा नसीब फरमा दे। और हम में से हर एक को अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक मदद की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत बहुत दुख दर्द में है, बहुत परेशानियां झेल रही है। ऐ अल्लाह अजीब भूख मरा भी फैला हुआ है, इज्जत वाले घराने भी बाहर निकल चुके हैं। ऐ अल्लाह कोई आदमी 2-2, 4-4 बेटियों को लेकर निकल पड़ा है और लोगों के आसरे पर वो जी रहा है। जिन्हें तूने दिया है, जिनको तूने दिया है, उन्हें तौफीक दे दे कि वो अपना सरमाया लगाए। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक को पूरे मदीने की फिक्र है और उनकी एक तसल्ली पर खुदा तू कैसा इंतजाम करता है। आज भी तमाम तर ताकतों के साथ तू वही अल्लाह मौजूद है। ऐ अल्लाह वो अबू बकर का दिलासा, उसका वसीला तेरे दरबार में पेश करते हैं। लंबा जमाना 2-2 साल का हो गया, अब अमन सलामती की लहरें चला दे। अब जालिमों को जुल्म की तैयारियों पर पानी फेर दे। अब मजलूमों की फरियादरसी फरमा दे। सेहत आपके हाथ में है, तंदुरुस्ती आपके हाथ में। आप किसी को बीमार पाते हैं तो उसके लिए दुनिया के अंदर कोई अल्लाह चेले नहीं भेजा करते हैं, कोई उसका अलाउंस करने वाले नहीं भेजा करते हैं। अल्लाह ये अलाउंस कैसा है, ये तैयारियां कैसी है। रब्बा फिर हमें जुल्म और जालिमों की चक्की में पीसने से बचा लीजिए, हमारी नुसरत और मदद फरमा दीजिए। जुमा का मुबारक दिन है, दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ये मकबूलियत की घड़ी होती है, जिसने मांगा हुआ मिल जाता है। कभी न कभी तो वो घड़ी हमारे हक में कर दे। अल्लाह तेरी रहमत से उम्मीद है कि तू कर ही देगा। पूरे आलम के अल्लाह बेचैनी को खत्म फरमा दे, अमन सलामती नसीब फरमा दे, उम्मत के दुख दर्द को दूर फरमा दे। मदारिस की हिफाजत फरमा, अभी अरी फरमा, दावत की अब हिफाजत फरमा ले। एक दूसरे पर फकरे कसने से, एक दूसरे पर सोशल मीडिया के ऊपर उछालने से अल्लाह किसकी पगड़ी उछाली जा रही है, किसकी टोपी उछाली जा रही है, किसका कुर्ता उछाला जा रहा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीकों की बाहम शरीक पगड़ियां उछालते हैं। दावत उछाली गई, मदरसे उछाले गए, अमारत उछाली जा रही है। ऐ अल्लाह इस उम्मत को हो क्या गया, करोड़ों से भी सबक हासिल नहीं किया, कितने आसमानों को जमीन के अंदर पहुंचा दिया, तब भी सबक हासिल नहीं हुआ। अब तो कोई तंजीम बाकी नहीं रही है जो टुकड़ा न हुई हो, जो तितर बितर न हुई है, जिसकी हवा न उखड़ गई हो। न कोई जमात, न कोई जमायत, न कोई माशरा, न कोई समाज। ऐ अल्लाह अब तेरी धरती पर इज्जत के साथ जीना भी मुश्किल हो चुका है। ऐ अल्लाह जालिमों को इतना पनपने न दे मेरे परवरदिगार। जालिमों को अपने फजल से, अपने कर्म से, अपनी उस खुदा अपनी ताकत के जरिए से या तो तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाह निकाल तू खुद ही कर दे, तो बहुत बड़ी ताकत का मालिक है। हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा। अल्लाह इन घिनौनी और मुहलिक अमराज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, पूरे इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अच्छी खबर आ रही है हरमैन से, अल्लाह इस खबर को सच्ची फरमा दे।
इस अच्छी खबर को सच्ची भी फरमा दे, फिर से हरमैन शरीफैन को आबाद फरमा दे, शादाब फरमा दे, पूरी दुनिया की मसाजिद को आबाद फरमा दे। प्यारे नबी की मांगी हुई हर खैर हमें नसीब फरमा, हर शर से हमारी हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।